प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, आज है संडे और जैसा कि आप जानते हैं कि संडे मैं चर्च व्लॉग डालता हूं और चर्च में हम क्या क्या वचन सुनते हैं। जो वचन मैं सुनता हूं वो वचन मैं आपको भी सुनाता हूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो वैसे ही आज हम जाएंगे चर्च, लेकिन चर्च जाने से पहले अभी कुछ थोड़ा काम है। वो काम ये है कि जो हमारी सोफ़ी है, सोफ़ी को लेके जाएंगे इंजेक्शन लगाने। और वो इंजेक्शन मतलब पापा और मैं जाएंगे स्कूटी में डाल के, मैं पकड़ूंगा पीछे। वैसे बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखो। और उसके बाद में फिर हम जब चर्च जाएंगे उसका व्लॉग भी आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल अभी सोफ़ी खाना खा रही है, जैसा कि हम देख सकते हैं। चलिए चलते हैं। अभी एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो सोफ़ी। मानसी इधर आओ। मानसी सोफ़ी कैसा करती है? ये देखो सोफ़ी इधर। तो ये मेरे पापा है। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। हेलमेट है हाथ में। जय मसीह। चलो। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Mahendra Bahubali! Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time तो चलते हैं, अभी सोफ़ी का वैक्सीनेशन होगा। to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. तो अभी हम लोग डॉग शॉप में आ चुके हैं और यहाँ पर सोफ़ी इधर वेट कर रही है अपने इंजेक्शन, जो वैक्सीनेशन है उसके लिए। सोफ़ी सिट सिट। And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this. छोटी बच्ची हो क्या? तो अभी सोफ़ी का वेट नापेंगे। I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't be scared. Just give it up. Don't be scared. I'm so gone. तो सोफ़ी 22 केजी उसका वेट है और मेरा पता है कितना वेट है? 70 केजी। बाप रे। डाइटिंग करना पड़ेगा। पूरा शरीर में, बॉडी में बाल बाल लग गया। ये देखिए बाल बाल सोफ़ी का। No, I'm never turning back. I won't stop. I'ma fight until there's nothing left. It's so on. You're gonna be hurting bad. Cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad. I stay strong. You will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. अभी इंजेक्शन टाइम सोफ़ी का। And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just give it up. Don't be scared. एक और है। हाँ।
गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल। हो गया पता। मेटल म्यूजिक सुनिए, जंग 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 जंग। सोफी गिटार बजा, ये देखो जंग 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 जंग, मेटलिक म्यूजिक। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. तो चलते हैं चर्च। तो चलते हैं। अरे चुप चुप। तो चलते हैं चर्च। अभी चर्च जाने का टाइम हो गया है और आप लोग भी जरूर वचन सुनिएगा। मानसी खोई, मानसी कहाँ पर है? मानसी जय मसीह बोलो। जय मसीह, गुड गर्ल। कर दो, इसको कर दो। हाँ, गुड गर्ल। चलो चलो जल्दी, लेट हो जाएगा। But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish. तो चर्च जैसा कि हम आ चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे, और आज भी वचन सुनेंगे और आप लोग भी जुड़े रहिए, आप लोग भी वचन सुनिए हमारे साथ में। चलिए वचन सुनते। आज मौसम ऐसा हो रहा है ना जैसे बारिश होने वाला हो। Love me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. जय मसीह, जय मसीह, उधर देखो। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय जय मसीह, मसीह, जय मसीह। जय मसीह। बहुत सारे चर्च, बहुत सारे क्या है, कलीसिया में ऐसे ही गवाही देने वाले हैं। ठीक है, हमको समझना बहुत जरूरी है। मेरे साथ पढ़िए नीतिवचन 19:5। जो झूठा साक्षी देगा उसका दंड उसको मिलेगा। घमंड करके चर्च के सामने आके गवाही दूंगा बोलेगा, ऐसा झूठ बोल रहा है लोगों का ध्यान खींचने के लिए, उसको पक्का दंड मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे हैं, मैं देखा हूँ चर्च में करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लोग प्रभु में ही नहीं है। तो बहुत केयरफुल, ये लोग क्या है, झूठ का विरोधी है। और आज का जो प्रचार था बहुत अच्छा प्रचार था। थोड़ा बहुत उस प्रचार के विषय में कुछ थोड़ा बता दीजिए थोड़ा। जय मसीह सभी को, आशीष भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा चर्च सेवा अभी जस्ट ख़त्म हुआ और एक्चुअली चर्च सेवा के समय वीडियो कर नहीं पाए, इसीलिए आशीष भाई ने छोटा सा जो हमारा ब्रीफली मैंने क्या प्रचार किया आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आज हम लोग
बात कर रहे थे स्पीकिंग द ट्रूथ। हमारा टॉपिक था स्पीकिंग द ट्रूथ। जैसे हम लोग देखते हैं सच्चाई आजकल दुनिया में चर्चेस में हो या वर्ल्ड हो या अन्य जाति समाज हो कि प्रभु के लोग हैं, आजकल क्या है संसार में सच्चाई को सच्चाई को मान के चलना नहीं चाहते हैं, इवन मसीह के लोग भी। तो इसीलिए एक राइटर J.W. स्टोल ने बोला है, तब तक हमारे जीवन में सही रिश्ता टिक नहीं पाएगा जब तक हमारा रिश्ता सच्चाई के साथ ना हो, सच्चाई से आधारित ना हो। तो इसीलिए हमारे परिवार में हो, स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, काम में हो, चर्च में हो, सभी चीज़ में मसीह ज़िंदगी में रिलेशनशिप सच्चाई के साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो मेरा प्रचार था स्पीकिंग द ट्रूथ, और मैं उसमें 3 पॉइंट बताया था। पहला पॉइंट था द एनिमी ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का विरोध। सच्चाई का विरोध कौन कौन है, सच्चाई का दुश्मन कौन है। पहली बात है हम देखते हैं सच्चाई का दुश्मन, पहली बात है धोखा, दूसरा बात है झूठ बोलना, तीसरा बात है झूठा साक्षी देना, चौथा बात है फ्रॉड करना। अच्छा, ठीक है। अच्छा। तो ये 4 चीज़ है झूठ का दुश्मन है। और उसके बारे में मैं कुछ बाइबल वचन भी दिया था, जैसे 1 कोरिन्थियों डिसेप्शन के बारे में, धोखा के बारे में 1 कोरिन्थियों 13 का 6 से 7 कि हम अगर सच में नहीं चलते हैं तो क्या होता है, हम सत्य में कभी भी हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं हो सकता। क्योंकि भजन संहिता 31 का 5 में बोला है, हमको उसने छुड़ाया, हमको उसने उद्धार दिया क्योंकि वो सत्यवादी परमेश्वर है। जब हम सत्यवादी परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं तो हमको सत्य का सहारा लेना ज़रूरत है, धोखा का नहीं, फ्रॉड का नहीं, झूठ का नहीं, झूठा गवाही का नहीं। ठीक है। और उसमें हम लोग देखते हैं नीति वचन 12 का 20 में भी दिया है, यूहन्ना 8 का 44 में भी दिया है कि झूठ लोगों का क्या हाल होगा। और नीति वचन 19 का 5 में भी हम लोग देखते हैं कि जो लोग झूठ बोलते हैं उनका पनिशमेंट फल क्या है। ये है मेरा पहला पॉइंट था स्पीकिंग द ट्रूथ में द एनिमी ऑफ ट्रूथ। और मेरा दूसरा पॉइंट था स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हम झूठ बोलते हैं तो आत्मिक रूप से उसका प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, आत्मिक रूप से उसका प्रभाव क्या पड़ता है। पहली बात हम देखते हैं आत्मिक रूप से सबसे मेन प्रभाव पड़ता है परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशनशिप जो है डैमेज होता है, हमारा रिलेशनशिप में दरार आता है। इसके बाद हम लोग कुछ वचन देखें, नीति वचन 6 का 16 से 19, जहां हम लोग देखें कि ये चरित्र क्या क्या है झूठ बोलने का। निर्गमन के किताब से हम 20 का 16 में भी देखें कि झूठ बोलना, झूठी गवाही नहीं बनना। तो क्या होता है, ये सब करने के द्वारा क्या होता है, परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशनशिप में दरार आता है और डैमेज आता है। ये दूसरा चीज़ है स्पीकिंग द ट्रूथ, जो दूसरा पॉइंट मैंने आज प्रचार किया। और मेरा तीसरा पॉइंट यही था कि हम कैसे झूठ से ओवरकम, हाउ टू ओवरकम लाई, हम झूठ से कैसे विजय पा सकें। झूठ से विजय पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सत्य परमेश्वर को सीखना जरूरी है, सत्य परमेश्वर को जानना जरूरी है। सत्य परमेश्वर में क्या करना है, सत्यवादी मन से, सच्चा मन से क्या करना है, परमेश्वर का चरित्र को हमारे जीवन में लागू करना है। क्योंकि परमेश्वर सत्यवादी है तो हमको सत्य को सीख के क्या करना है, उसको रिफ्लेक्ट करना है, अलग को दिखाना है कि परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में क्या है। कि परमेश्वर सत्यवादी परमेश्वर है, जो परमेश्वर का मैं सेवा कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे भी क्या करना है, सत्य के साथ उसका उद्देश्य को पूरा करना है, झूठ के सहारा लेके नहीं, सत्य का सहारा लेके। और क्या करना है, कैसे हम झूठ से जीत पाए, पहली बात तो सीखना है, दूसरी बात हमको अलग को दिखाना है, हम सत्य का उद्देश्य का काम कर रहे हैं, तीसरी बात हम समर्पित होना है, अपने आप को परमेश्वर का आज्ञा मानना है, और क्या करना है, अपने आप को परमेश्वर में समर्पित होना है। तब जाके हम क्या कर सकते हैं, सत्य से हम आगे, सत्य को क्या कर सकते हैं, सत्य के साथ चल के झूठ को जीत सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक था स्पीकिंग द ट्रूथ, पहली बात, पहला पॉइंट में क्या बताया, स्पीकिंग द ट्रूथ में द एनिमी ऑफ द ट्रूथ। दूसरी बात क्या बताया मैं, दूसरी बात बताया
द स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ट्रूथ। अगर झूठ बोलते हैं तो उसका आत्मिक परिणाम क्या होता है, सच बोलते हैं तो उसका आत्मिक परिणाम क्या होता है। उसका आत्मिक परिणाम होता है, अगर हम झूठ का सहारा लेते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध खराब होता है। और आखिर में हम कैसे झूठ को जीत सकते हैं, ये चीज़ को मैंने बताया। और आखिर में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि वी शुड ऑलवेज लुक केयरफुली बिफोर जंपिंग एंड थिंक बिफोर स्पीकिंग। सो बी अवेयर ऑफ डिसेप्शन, स्पीकिंग द ट्रूथ। और पास्टर जी, जैसे एक पॉइंट आपने बहुत अच्छा बताया था कि जैसे आजकल बहुत पास्टर्स चर्च में जो सच बोलना चाहिए, पाप के विषय में प्रचार करना चाहिए, वो नहीं करते। तो वैसे पास्टर्स का क्या हश्र होगा जब यीशु मसीह आएगा फिर? ओके, बहुत सारे चर्चेस में आज पाप के बारे में, जजमेंट के बारे में, बुराई के बारे में प्रचार नहीं होता है। इसीलिए पहला कारण यही है कि पास्टर चाहता है कि चर्च एक क्लब घर हो गया है। चर्च परमेश्वर का मंदिर बोल के नहीं रहा, क्योंकि क्लब घर में सब सोशल वर्क होता है, सत्यता का काम नहीं होता है। इसीलिए जो पास्टर लोग झूठ का सहारा लेके सेवा करते हैं, उनका कॉन्सिक्वेंस जरूर उनको मिलेगा, उनका फल उनको जरूर मिलेगा। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य 21:8 में हम लोग देखेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, लेक ऑफ फायर। ठीक है, तो हमको सत्यवादी परमेश्वर का काम सत्यता से करना है। सत्यवादी परमेश्वर का काम कभी भी हम झूठ का सहारा लेके नहीं कर सकते। उसका परिणाम हो सकता है आप लोगों को, ऑडियंस को खुश कर सकते हो, लेकिन आपके जीवन के द्वारा जो सेवा परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर उसके द्वारा कभी महिमा नहीं पाएगा और परमेश्वर का महिमा कभी नहीं होगा आपके मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री परमेश्वर ने आपको दिया है। तो झूठ का सहारा लेके सेवा करना कुछ समय के लिए तो अच्छा लगेगा, लोगों से आप बहुत आपको लोग अच्छा बोलेंगे क्योंकि उनको चोट नहीं पहुंचता है। पाप के बारे में बोलने से, जजमेंट के बारे में जब आप नहीं बोलते हैं उनको अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर उसमें कभी खुश नहीं होता है। अगर आप सच्चा परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं तो सत्य का सहारा लेके सेवा करो, नहीं तो उसका अंजाम लेक ऑफ फायर है, अनंत का झील, आग का झील। आग का झील। ओके, तो पास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ये छोटा समय जो आपने दिया। आपका, जैसे मैंने बताया कि आपका वीडियोस बहुत से लोग देखते हैं, बहुत से लोग सीखते हैं, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा परमेश्वर का काम करने का उद्देश्य हमारा यही है कि हमको दुनिया में परमेश्वर का काम करने का मुख्य उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमको चुना कि हम दुख के साथ, तकलीफ के साथ, मेहनत के साथ, परमेश्वर का वचन के साथ, सत्य वचन के साथ परमेश्वर का काम करें। यहाँ दुनिया में हम परमेश्वर का सेवा करने, फेमस बनने, पॉपुलर बनने, ये करने नहीं आए हैं, लेकिन वचन के साथ। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया उसका प्रचार करने के लिए, उसने तकलीफ में सेवा किया, लोग उसको आखिर में मार दिए, बहुत कम लोग उसको जाने, है ना। इसीलिए हम परमेश्वर का सेवा फेमस बनने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर का सेवा, परमेश्वर का सत्य वचन को लोगों को बांटने के लिए आए हैं। ठीक है, सबको जय मसीह। जय मसीह आशीष। जय मसीह सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। हाँ। जय मसीह मानसी, जय मसीह मानसी, जय मसीह, जय मसीह, गुड गर्ल। जय मसीह। तो जैसे कि हमने आज का वचन सुना कि किस तरीके से हम देखते हैं कि पास्टर्स लोग खाली अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, बुरी बातें नहीं बताते। विश्वासियों को पाप के विषय में प्रचार नहीं किया जाता, तो वो झूठ का सहारा लेते हैं, खाली अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। ओके, और पाप के विषय में प्रचार नहीं करना भी एक तरीके से झूठ का सहारा लेना ही हुआ। तो बी अवेयर और झूठ का सहारा मत लीजिए, और जो भी प्रचार कीजिए पाप के विषय में भी ज़रूर शेयर कीजिए विश्वासियों को। तो मेरे प्रियो, आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट संडे व्लॉग में। तब तक के लिए जय मसीह की, जय मसीह।